Student, we have studied mechanism of nodule formation so far. In this video, we will study about mechanism of symbiotic nitrogen fixation. Symbiotic means association of plant and bacteria. What will be the result? Fixing of nitrogen. Nitrogen fixation means conversion of free nitrogen into nitrogenous compound. So, we will see there is most important role of nitrogenase enzyme as we studied in earlier video. What is nitrogenase enzyme? This enzyme helps conversion of nitrogenous free nitrogen यानी nitrogen gas into nitrogenous compounds such as ammonia. Nitrogenase enzyme कौन secrete करता है? It is secreted by Rhizobium bacteria. And why Rhizobium bacteria secrete this enzyme? Why not other bacteria? Because there is a specific gene which is present in Rhizobium only, that is NIF gene. NIF gene codes for nitrogenase enzyme. So what is the role of this enzyme? We will see. This is nitrogenase enzyme and it binds with nitrogen gas. It binds with nitrogen gas. Here are two atoms of nitrogen gas. So first of all, ये nitrogen atom bind हो गया. ये nitrogen जो gas है, it binds with enzyme. This process is called binding of substrate, as you studied in enzyme chapter. Now, nitrogenase enzyme, what will do? It will do reduction. Reduction क्या होगा? Addition of hydrogen. Addition of hydrogen. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं reduction first. अब reduction meaning क्या है? Addition of hydrogen we can say. So in second step, this is nitrogen gas which has bound with nitrogenase enzyme. Hydrogen binds with nitrogen. Next, two more molecule of hydrogen ion binds with nitrogen. This is called reduction 2. See, this is nitrogen atom and hydrogen, one more molecule. पहले तो एक अटैच ही है, अब और एटम इससे अटैच हो गया. अब ये क्या बन गया? NH2. नाउ फाइनल रिडक्शन 3. टू मोर मॉलिक्यूल. Nitrogen atom. Now we will add one more atom of hydrogen with nitrogen. So we can see there are 3 molecules of ammonia are produced, but it is bound to nitrogenase enzyme. Now this product, यानी ये तो हमने क्या ऐड करा है यहाँ पर? नाइट्रोजन गैस यहाँ पर ऐड हुई है. हमने क्या, ये तो एटमॉस्फेयर में नेचुरल प्रोसेस हुआ है कि नाइट्रोजन गैस किससे बाइंड हुई? नाइट्रोजनेस एंजाइम में. ये फर्स्ट स्टेप. देन सेकंड स्टेप में रिडक्शन फर्स्ट, रिडक्शन 2, रिडक्शन 3 एंड प्रोडक्ट क्या बना? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आर रिलीज्ड. Clear? Or nitrogenase enzyme gets free because it acts as catalyst. It is ready to bind with another nitrogen gas. So this cycle will be continue
और इसका रिजल्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो N2 से NH3 का फॉर्मेशन हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाई इज इट कॉल्ड सिम्बायोटिक? बिकॉज राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूम प्लांट्स के बीच में ये प्रोसेस हुआ है। लेग्यूम प्लांट्स, राइजोबियम बैक्टीरिया ने कौन सा एंजाइम सीक्रेट किया है? नाइट्रोजिनेस एंजाइम। दिस इज नाइट्रोजिनेस एंजाइम। ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम रिलीज हुआ। देखिए ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? प्रोटीन तो होगा ऑब्वियसली, कि प्रोटीन एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी कुछ एंजाइम्स में ऐड होते हैं। तो ये वही एंजाइम है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, मोलिब्डेनम, आयरन। Molybdenum and iron elements are also part of component of nitrogenase enzyme। ये भी आपको लर्न करना, ठीक है। अगर पूछे कि नाइट्रोजनेस एंजाइम कोडिंग किससे होती है? निफ जीन से। निफ जीन किस में प्रेजेंट होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया में। राइजोबियम बैक्टीरिया किस प्लांट से अटैच होता है? लेग्यूम प्लांट से। लेग्यूम प्लांट सच एज पी, बीन्स, ग्राउंडनट, वी हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर ये था मैकेनिज्म ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। बट अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि ये अमोनिया भी प्लांट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब अमोनिया बिकॉज इट इज़ वेरी टॉक्सिक। अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक। अब अमोनिया को क्या करेंगे? ये इनऑर्गेनिक पार्ट है, इसको ऑर्गेनिक पार्ट में चेंज करेंगे। क्लियर? तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि अमोनिया जो है it converts into organic substance. As ammonia is formed in nitrogen fixation process, plants cannot use directly because it is toxic. So ammonia is converted into amino acid. तो ये तो हो गया inorganic, and that is amino acid कैसे हैं? Organic substance. तो this is called assimilation of ammonia. Plant use amino acid. सो अब ये होगा कैसे? यानी इसका फॉर्मेशन, कन्वर्जन कैसे होगा? इट इज़ कॉल्ड एमिनेशन प्रोसेस। एमिनेशन occurs by 2 methods. First is reducing amination and second is transamination. Reducing amination से ऐसे साउंड होता है कि फर्स्ट अमोनियम कंपाउंड है, इट रिएक्ट्स विद अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, यानी इसमें रिडक्शन होगा, रिड्यूस होगा ये। और किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड। ये किससे बना है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से। रिएक्ट किससे हुआ है? ठीक है, अमोनियम आयन से। तो यहाँ पर एंजाइम का नेम और लिखते हैं, एक तो है NADPH2 की प्रेजेंस में, और एंजाइम का नेम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, और क्या फ्री हो रहा है? NADP। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि रिड्यूसिंग एमिनेशन में अमोनियम आयन किससे रिएक्ट करता है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से। फॉर्मेशन किसका होता है? ग्लूटामिक एसिड। प्लांट कैन यूज ग्लूटामिक एसिड बट नॉट अमोनिया। क्लियर? तो ये तो है रिड्यूसिंग, फर्स्ट रिड्यूसिंग एमिनेशन। सेकेंड इज ट्रांस एमिनेशन। देखिए मीनिंग इसमें ही, जैसे इसे नेम से ही पता लग रहा है कि ट्रांस एमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, यानी एक अमीनो एसिड से यहाँ पर ये 1 अमीनो एसिड है। क्लियर? अब यहाँ पर ये अमीनो एसिड है, इट रिएक्ट विद कीटो एसिड। कीटो एसिड क्यों कहा इसे अमीनो एसिड क्यों कहा? बिकॉज इट हैज़ ये जो है अमीनो ग्रुप है, इसमें ये हम कहेंगे कि अमोनियम आयन है। अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये तो है अमीनो एसिड, और यहाँ पे कीटो ग्रुप है तो इसे हम कहेंगे कीटो एसिड। ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में,
ट्रांसफरेज एंजाइम जो किसको ट्रांसफर करेगा, इसे हम कह सकते हैं ट्रांस एमिनेज एंजाइम। ट्रांस एमिनेज एंजाइम ट्रांस एमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो अमीनो ग्रुप है ये ट्रांसफर टू कीटो एसिड और क्या फॉर्म हो जाएगा, सी R2C NH3 प्लस COO एंड H। दिस इज, ये कीटो एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड में। दिस इज सेकेंड वन, ये सेकेंड वन ही है जो अब किस में हो गया, अमीनो एसिड में चेंज हो गया। क्लियर? आई थिंक इट्स नॉट विजिबल completely. Wait, I will write again. See, I have written again. This is amino acid, this is keto acid. In the presence of transaminase enzyme, this enzyme we have studied in enzyme chapter. What does it do? It will transfer amino group from one substrate to another. देखिए, what is amino acid? Amino acid has NH, एक तो होगा उसमें NH2 ग्रुप यानी अमाइनो ग्रुप और एक होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब ये दोनों अटैच रहते हैं दैट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। इसमें नेम में ही पता लग रहा है, अमाइनो मीन्स अमाइनो ग्रुप, एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अमाइनो एसिड ये है। यहाँ पर ये देखिए आप R1 क्या है, अमाइनो एसिड है, और R2 इज कीटो एसिड बिकॉज इट लैक्स अमाइनो ग्रुप, इट हैज़ ओनली कीटो ग्रुप, तो ये हो गया कीटो एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसएमिनेज एंजाइम, अमाइनो ग्रुप attached to second one, amino group attached to second one from first. So this is second one which has made amino acid and this is first one which converts into keto acid. So in the presence of, यानी यहाँ पर क्या हो गया है कि अमाइनो ग्रुप ऐड हो गया है, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया है। कि प्लांट्स क्या करेंगे, या तो इस प्रोसेस से या तो इस मेथड से अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे और ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो NH3 यूज़ नहीं करेंगे, दे विल यूज़ अमाइनो एसिड। क्लियर? When we started the chapter, we have discussed these 4 steps. First, nitrogen fixation, second is ammonification, third is nitrification, and fourth is denitrification. We have studied nitrogen fixation here. Now we will study remaining 3 steps. Ammonification. What is ammonification? See, when plants died, and death of plant, death and decay of plant causes decomposition of plant with the help of microbes. जो soil में plants की leaves, roots, stem, remaining जो parts हैं, they dump into soil and with the help of enzyme they degrade it. They degrade. Which enzyme, which bacteria is responsible for it? That is there are 2 types of bacteria, Clostridium and Pseudomonas. We will remove this because you can get confused. We are talking about ammonification now. Ammonification में क्या है, डेड प्लांट का जो इन्वॉल्व है, नॉट लिविंग प्लांट। अभी तक हम लिविंग प्लांट का इन्वॉल्वमेंट देख रहे थे, बट अमोनिफिकेशन क्या है, इट इज रिवर्ट प्रोसेस। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि फॉर्मेशन, हमने जस्ट पढ़ा कि अमोनिया से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अमीनो एसिड से। लेकिन यहाँ हम इसका रिवर्स प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि जब प्लांट्स की डेथ हो गई है, दे डम्प्ड इनटू सॉइल और उनमें जो उनके ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेज है, कंपाउंड्स हैं, दे डिग्रेड with the help of Clostridium and form ammonia. This process is called ammonification. It takes place by 2 methods. First is proteolysis
proteolysis and second is deamination. प्रोटियोलाइसिस मीन्स कि जो प्रोटीन पार्ट है जो भी प्लांट का, जो भी सेल वॉल है उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, हम जानते हैं कि प्रोटीन बहुत होता है प्लांट्स की, जितनी स्ट्रक्चरल अगर हम देखें तो इट इज़ मोस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल, देन प्रोटीन विल डिग्रेड इनटू अमीनो एसिड. क्लियर? पहले प्रोटीन किस में ब्रेक होगा? अमीनो एसिड में. और ये किससे होगा? क्लोस्ट्रीडियम एंड स्यूडोमोनास से. व्हेन प्रोटीन is broken down into amino acid, this process is called proteolysis with the help of Clostridium and Pseudomonas. ठीक है. एंड सेकेंड इज मेथड इज डीएमिनेशन. डीएमिनेशन में ही पता लग रहा है. डीएमिनेशन मीन्स, एमिनेशन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड. और यहाँ पे डीएमिनेशन हो गया कि ये जो अमाइनो एसिड हैं ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यानी यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड है दे गेट ऑक्सीडाइज. NH3 इसमें हो जाएगा नाइट्रेट में. इसका ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा? नाइट्रेट में. हम कह सकते हैं कि अमोनिया से पहले ये बना अमोनिया, और इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू, सॉरी ये वेट, डीएमिनेशन मीन्स हो गया कि अमाइनो एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू अमोनिया, यानी यहाँ भी यहाँ तक ये स्टेप. दिस इज प्रोसेस कॉल्ड डीएमिनेशन बिकॉज दे ब्रोक डाउन इनटू अमोनिया. इसमें कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं? बेसिलस स्पीशीज. बेसिलस स्पीशीज इन्वॉल्व इन डीएमिनेशन. क्लियर? नाउ वी विल स्टडी अबाउट थर्ड स्टेप, that is nitrification. What is nitrification? Nitrification means formation of nitrates. Formation of nitrate. That is called nitrification. It occurs in two steps. फर्स्ट इज अमोनिया जो था इट गेट ऑक्सीडाइज इनटू HNO2 नाइट्राइट एंड देन फाइनली इनटू नाइट्रेट. दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. तो अब ये कैसे होगा? नाइट्रिफिकेशन के स्टेप्स भी हम देखते हैं. इट अकर्स इन टू स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट. NH3 it get oxidized and form HNO2 means nitrite, and H2O plus energy. Further this HNO2 oxidize and form HNO3 means nitrate, nitric acid, okay, plus energy. Now you can balance this. NH3 हो गया 2 3 2 molecule of HNO2 and 2 molecule of H2O. So 2 HNO2 यहाँ है, yes, 2 molecule of HNO3 will produce. तो यहाँ पे अमोनिया से किसका फॉर्मेशन हो गया? नाइट्रेट. क्लियर? तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? नाइट्रिफिकेशन. अब ये प्रोसेस जो है विदाउट एंजाइम इम्पॉसिबल है. तो फर्स्ट जो ये रिएक्शन है इसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है? नाइट्रोसोमोनास. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट. आपको ये याद रखना है कि अमोनिया से नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो रहा है. द नाइट्रोसोमोनास इज इन्वॉल्व. और नाइट्राइट से नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो नाइट्रोबैक्टर. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे लास्ट स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन.
process of breakdown of nitrate into atmospheric free nitrogen, that is called denitrification. Clear? Denitrification means अब जो nitrates हैं they break down into atmospheric nitrogen gas. There are two bacteria which involved with Bacillus denitri. अब ये denitrification कर रहे हैं, सो denitrificans, इनका नॉमेनक्लेचर भी ऐसे ही हुआ है इनके एबिलिटी और इनकी एक्टिविटी के बेसिस पर. बेसिलस मीन्स हो गया रॉड शेप बैक्टीरिया. ओके, जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या लगता है बेसिलस, और जो सर्कुलर रहते हैं ऐसे उनमें लगता है कोकस. जो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं दे कोकस, और रॉड शेप होते हैं दे बेसिलस. तो बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस involved in denitrification, and another bacteria is Thiobacillus denitrificans. Thio means होता है सल्फर, यानी ये बैक्टीरिया क्या है सल्फर बैक्टीरिया है, रॉड शेप है और इनका फंक्शन क्या है डीनाइट्रिफिकेशन करना. सो Bacillus denitrificans and Thiobacillus denitrificans are involved in the process of denitrification. Meaning of denitrification is breakdown of nitrate into atmospheric free nitrogen. क्लियर? तो यहाँ पे हमने 4 स्टेप पढ़ लिए. अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है नाइट्रोजन साइकिल, जो अब हम इन्हें कनेक्ट करेंगे. जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, वी विल कनेक्ट इट. सी दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन. दिस इज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड हेयर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ था बायोलॉजिकल में? अब बायोलॉजिकल जब हमने इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ा था तो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ था. यहाँ पे भी अमोनिया पहले प्रोड्यूस हुआ था, फिर उसका जो असाइमुलेशन किस में हुआ था अमाइनो एसिड में, और उसे किसने यूज़ किया था प्लांट्स ने. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लांट्स. ठीक है. अब यहाँ पर प्लांट्स को कौन कंज्यूम करते हैं? एनिमल्स. प्लांट्स को कौन कंज्यूम करते हैं? एनिमल्स. एनिमल्स की डेथ से और प्लांट की डेथ से क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा. किससे? स्यूडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम फंगस, इनके इन्वॉल्वमेंट से ये एनिमल्स की जो डेथ डिके, हम यहाँ कर देते हैं इनकी डेथ, और डिके पार्ट गेट डिकम्पोज, और किस में ये कन्वर्ट होंगे? अमोनिया में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन. ठीक है. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अमोनिया है इट विल फॉर्म नाइट्राइट फर्स्ट by oxidation with the help of Nitrosomonas bacteria, and further it oxidizes into nitrate with the help of Nitrobacter. So we can write here nitrate. Clear? With the help of Nitrobacter. This nitrate present in soil, और एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रेट का फॉर्मेशन कब होता है? हमने पढ़ा था जो थंडर और लाइटनिंग की प्रेजेंस में भी. तो यहाँ हम लिख सकते हैं थंडर एंड लाइटनिंग की प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट. और नाइट्रेट जो है it can also broke down into atmospheric nitrogen, that is called denitrification. Denitrification में एंजाइम कौन कौन से पढ़े थे? स्यूडोमोनास एंड Thiobacillus and Bacillus. Denitrificans. Bacillus and Thiobacillus.
अब ये नाइट्रेट जो है ये सॉइल में प्रेजेंट है, इसको कौन कंज्यूम करेंगे? प्लांट्स, विल बी कंज्यूम बाय प्लांट। तो आप देखेंगे ये कैसे कनेक्टेड है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ? अमोनिया का। बायोलॉजिकल ये कब हुआ? ये हैबर मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड से। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से अमोनिया हुआ जो टॉक्सिक थी, कौन से एंजाइम से? नाइट्रोजनेज एंजाइम से। जब उसका असाइमुलेशन हुआ तो क्या बना? अमाइनो एसिड। प्लांट ने ये नाइट्रोजन को असाइमुलेट करा। प्लांट्स को किसने कंज्यूम किया? एनिमल्स ने। एनिमल्स की डेथ पार्ट, जो डेड पार्ट है, दे कंज्यूम एंड फॉर्म अमोनिया, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अमोनिया ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म नाइट्राइट by nitrosomonas enzyme. Nitrate further oxidize and form nitrate with the help of nitrobacter. Nitrate is consumed by plant. Atmospheric nitrogen can directly form by thunder and lightning. ठीक है, तो यहाँ पर ये है नाइट्रोजन साइकिल। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, नाइट्रोजन साइकिल। थैंक यू वेरी मच।